Hello students and welcome. In the previous class of history of 7th class, we studied lesson first of civics, that is about democracy, and we have studied up to emergence of democracy in modern societies. In today's video we shall proceed further and we will start rule of law. So in democracy the law is supreme and all people are equal in the eyes of law. No one is above the law and no one is discriminated against. Anybody who breaks the law is liable to be punished and nobody shall be punished if he has not broken the law. Prior to the glorious revolution, it was believed that the king's wishes were the rule of law. The people protested against this principle. They dethroned their king. King James II in 1688 passed the Bill of Rights and established the idea that the country should be ruled by the laws passed by the parliament. A century later, through the French Revolution 1789 to 1815, the people of France executed their king, King Louis XVI, and established the rule of law. In fact, the rule of law was the first important step towards the establishment of a democratic government. So, rule of law मतलब कि कानून का शासन. किसी भी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश में जो कानून होता है वो सर्वोच्च होता है और जितने भी वहाँ के लोग होते हैं वो सब के सब कानून की नज़र में एक समान होते हैं. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी के भी साथ मतभेद नहीं होना चाहिए. जो भी कानून तोड़ता है वो पनिशमेंट के लिए, सज़ा के लिए का अधिकारी है और जिसने भी कानून नहीं तोड़ा है उसको किसी भी तरीके की कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती है. जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले यही माना जाता था कि जो राजा की इच्छा होती थी वही कानून है, लेकिन लोगों ने इस सिद्धांत के विरुद्ध में प्रोटेस्ट किया. उन्होंने अपने राजा किंग जेम्स सेकंड को 1688 में सिंहासन से हटा दिया और उसके बाद एक बिल पास किया गया जिसमें अधिकार शामिल थे और साथ ही साथ ये आइडिया भी निर्मित किया गया कि कंट्री जो देश में उस कानून का शासन होना चाहिए जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है. एक शताब्दी के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति जो 1789 से लेकर 1815 तक चली थी, वहाँ फ्रांस के लोगों ने अपने राजा लुइस 16 को मार दिया और वहाँ पे कानून का शासन लागू किया. जो रूल ऑफ लॉ है ये किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के निर्माण में, स्थापना में पहला कदम होता है. These revolutions greatly strengthened the roots of democracy by firmly establishing the ideas of accountability and responsibility, which meant that government must be responsible to the electorate, that is the people who have the right to vote. Initially, the right to vote was given to a limited number of wealthy and powerful people. The middle and the poor classes had no representation in it. After a long struggle, the right to vote, also called franchisee or suffrage, was gradually extended to all. But still the women did not enjoy this right. The struggle for the women's suffrage continued and ultimately they too got the right to vote. The right to vote given to every adult in a country is called the universal adult franchise. तो इन क्रांतियों की वजह से जो लोकतंत्र की जड़ें थी वो मजबूत थी और जो भी सरकार बनती थी वो जो उस सरकार को चुनने वाले थे उनके प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार थी. शुरुआत में जो राइट टू वोट यानी वोट करने का अधिकार था वो केवल कुछ ही अमीर और ताकतवर लोगों को था. जो मिडिल क्लास के लोग थे और जो गरीब लोग थे उन लोगों को प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं था. काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो ये वोट का अधिकार था, जिसको हम लोग फ्रेंचाइजी या सफरेज भी कहते हैं, ये और एक्सटेंड हुआ
और उन लोगों को भी, जो गरीब तबके के लोग आते थे, मध्यम वर्ग के लोग आते थे, उनको भी वोट करने का अधिकार मिला। लेकिन तब भी जो औरतें थीं उनको ये वोट करने का अधिकार नहीं था। फिर औरतों को ये अधिकार बड़े संघर्ष के बाद मिला। उसके बाद फिर जितने भी एडल्ट लोग थे कंट्री में, उन सभी को वोट करने का अधिकार मिला। और इस वोट करने के अधिकार को, जो एडल्ट होते हैं उनको वोट करने के अधिकार को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। ड्यूरिंग द 19th and 20th centuries, the idea of democracy further developed and spread in new directions. It was felt that the right to equality established in democracy should not be restricted to the political field. It should be extended to the economic and social spheres as well. Thus, democracy involves the following 4 steps: rule of law, principle of accountability and responsibility, universal adult franchise, political equality extended to economic equality. 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ये जो लोकतंत्र का आइडिया था ये और विकसित हुआ और नई दिशाओं की तरफ बढ़ा। ऐसा महसूस किया गया कि जो समानता का अधिकार है वो केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वित्तीय स्तर पर, मतलब आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। इसके बाद लोकतंत्र में 4 स्टेप्स आए, जिनमें पहला था कानून का शासन, दूसरा था जवाबदेही और जिम्मेदारी के सिद्धांत, तीसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, चौथा था राजनीतिक समानता और साथ ही साथ आर्थिक समानता भी। नेक्स्ट, different systems of powers existing in the world. Though this is the age of democracy, there are still non-democratic government in many countries of the world. A non-democratic government is called dictatorship, wherein force is the basis of authority. The citizens are not given the right and freedom to participate in the working of the government. People cannot participate in the decision making and law making, and ruler rules according to his own free will. A dictatorship may be of army, military, or that of a political party. It is called a despotic government. तो हालांकि ये जो आज का युग है ये लोकतांत्रिक युग है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं कुछ देशों में दुनिया के, और ऐसी गैर लोकतांत्रिक सरकारों को हम तानाशाही कहते हैं, जहाँ पे जो भी जो भी फैसले लिए जाते हैं वो अथॉरिटी के, जो वहाँ की अथॉरिटी होती है उसकी मर्जी के खिलाफ मर्जी के अनुसार होते हैं। जो जनता होती है उन देशों की, उनके पास सरकार में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है, ना ही आज़ादी होती है। जनता वहाँ की किसी भी निर्णय को लेने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ना ही कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर सकती है, और जो वहाँ का शासक होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता है। एक तानाशाही सरकार जो होती है वो चाहे सैन्य सरकार हो या किसी राजनीतिक दल की सरकार हो, ये एक तरह से आपकी तानाशाही गवर्नमेंट होती है। तानाशाही गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण है आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया का, जहाँ पे एक तानाशाह की मर्जी के मुताबिक पूरा देश चलता है। तानाशाह जो भी फैसले लेता है बस वही कानून बन जाता है। नेक्स्ट इज मोनार्की. Monarchy is another form of government in some countries. It could be a constitutional monarchy in which the powers of the monarch are defined by the constitution. Example, in the United Kingdom, or in an absolute monarchy where in the ruling family, that is the monarch, has absolute control over a state. मोनार्की मतलब राजशाही. ये एक और सरकार का एक और तरीका होता है, सरकार का एक और प्रकार होता है जो कि कुछ कंट्रीज में चलता है. ये या तो आपकी संवैधानिक राजशाही होती है जिसमें जो राजा होता है उसकी शक्तियां संविधान के द्वारा डिफाइन की जाती हैं. जैसे कि यूनाइटेड किंगडम जो हमारा ब्रिटेन है, वहाँ जो है आपका जो महारानी का शासन है, लेकिन महारानी की शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन की गई हैं, परिभाषित की गई हैं. और एक दूसरी मोनार्की होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूर्ण राजशाही, जहाँ पे जो शासन करने वाली फैमिली होती है, शासन करने वाले परिवार होता है, उसके पास पूरे देश भर को कंट्रोल करने की ताकत होती है.
वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है या रूल्स बनाता है। थर्ड, डेमोक्रेसी, वो थियोक्रेसी। Theocracy is a system of government wherein religious leaders hold power. Members of the majority religion make up the government. Civil laws are made to conform to the religious teaching of the majority religion. Recently, some countries have combined the elements of theocracy and democracy. तो थियोक्रेसी सरकार का वो प्रकार होता है जहाँ जो धार्मिक नेता होते हैं उनके पास मुख्य ताकत हुआ करती है। जो किसी उस देश में जो मुख्य रिलीजन होता है, मुख्य धर्म होता है, वो अपनी सरकार बनाता है और जो नागरिक कानून बनाए जाते हैं वो जो मेजॉरिटी रिलीजन वाले होते हैं उनको ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं। हाल ही में कुछ कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो कि थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन दोनों कंबाइन करके गवर्नमेंट बना रही हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने रूल ऑफ लॉ और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पावर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।